Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at City Capital. I know आप लोगों ने इंटरव्यू वीडियो देखने के लिए क्लिक किया है, सो जस्ट वेट अ सेकेंड बिकॉज मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है एंड इट इज़ अ फाउंडेशन बैच जिसमें आपको CUET 2025 साइकोलॉजी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे विद एन एफिशिएंट टाइम जिसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगी एंड यू मस्ट बी नोइंग कि क्या क्या। सो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्ड लेक्चर्स मिलने वाले हैं, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीकली टेस्ट होंगे, आपके डाउट सेशंस होंगे एंड आपको इसी के साथ साथ PPTs मिलेंगी, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे एंड मेरे से पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। इट मीन्स कि आपको कभी भी कोई भी डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन द व्हाट्सएप एंड आई कैन रिजॉल्व द क्वेरी। तो इसी के साथ कंटिन्यू विद द वीडियो ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, माय स्टूडेंट यश। Current college life is pretty good. Particularly, मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का ही पता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। Okay. मतलब टीचर्स जो होते हैं वो हर क्लासेस में आपको रिमाइंड कराएंगे, इवन सेमेस्टर एंड में भी आपको रिमाइंड कराते हैं कि 75 अटेंडेंस इज मस्ट। अब भी मैं आया हूँ, मेरे से बोला है कि अटेंडेंस को चेक कर तब जा। तो बाकी कोर्सेज इतना हेक्टिक नहीं है, बट एक लेवल तक है कि हमारे इंटरनल्स होते हैं, देन उसके बाद मतलब 3 माइनर्स होते हैं और एक मेजर होता है। Okay. So what is the course name you're pursuing there? मास्टर ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी। Okay. And if I'm not sure, I'm not sure, like there is also a health psychology also, right? Earlier it was health psychology, but Okay. From this year it was changed to only psychology. So from now onward, they will teach you the wholesome, like holistic psychology PG course, right? Yes. Okay. So like I'm really curious about everyone. So what was your reason to choose psychology? Like what was the call? My reason to choose psychology. It could be weird. It could be inspiration. It could be anything. It's not weird. I think it's like same for everyone. Okay. So after 12th, I was also preparing for MBBS or some MBBS and exam. So, but I couldn't get it. So I was watching one podcast, something I don't know which podcast it was, but it was related to psychology or something, and I was talking to my friends to having a graduation or something. So तभी psychology आई मेरे mind में कि मेरे को परस्यू करना है। मतलब मैंने जब इसको पढ़ा, जब मैंने इसके टॉपिक्स को देखा, then all right. So you just आपको एकदम से इंटरेस्ट से डेवलप हो गया क्योंकि this is something, this is a subject I can study. मैं मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं मेडिकल में इंटरेस्टेड था, मतलब ह्यूमन बॉडी से इंटरेस्टेड था। तो मेरे को MBBS करना था, लेकिन अब उधर मैं नहीं जा पाया। लेकिन जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ा तो मेरे को ऐसा लगा कि जो मेरा फैसिनेशन है वो बॉडी से नहीं, माइंड से है। तो इसलिए मैं उस साइड गया। देन फिर जब मैंने इसके टॉपिक्स पढ़े, मतलब कॉग्निशंस, मेमोरी, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, तो मैंने देखा कि मेरा जो मेन इंटरेस्ट था वो इधर था, तो इस वजह से मैंने इसे चूज किया। Alright. So who is your favorite psychologist? Rapid fire something. Current or all time favorite? All time favorite. Rogers. Okay, Carl Rogers. Interesting. Carl Rogers. So coming back to the topic, when was the time you thought of preparing CUET? Like what was the time, when did you start preparing for CUET actually, that क्या आपका CUET mode on हो गया क्योंकि from now onwards I should study exam oriented? I was late. I also messaged you when I bought the course. Like I started preparing in January 2024. Like the exam is in 2023 and I started preparation in 2024, and at that moment when I bought the course, I just messaged you कि I didn't know anything about exam this. था January में तुम start करते थे, but only 3 months I think. 3 months, but you assured me that's thing I like about you कि आपने मेरे को assure किया कि इतना tough नहीं है, सब easy है, आराम से हो जाएगा, और हो गया। I don't think so it was easy for you. नहीं, easy तो नहीं लगा होगा I think. Okay, that's a myth breaker. Okay. So on a scale of 10 आपकी preparation toughness या hardness कितना था आपका? कितना tough लगा preparation आपका? मुझे मेरा प्रिपरेशन
टफ नहीं था मेरे को अपनी प्रिपरेशन, बस कंसिस्टेंसी मेरे को टफ लगती है, प्रिपरेशन टफ नहीं थी, एग्जाम इजी था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था पढ़ने में, तो इसलिए। बट जो उसमें कंसिस्टेंट रह के पढ़ना वो डिफिकल्ट है कि आपको डेली मतलब कुछ आवर्स ऑफ टाइम डिवोट करना है, वो चीज डिफिकल्ट है। बाकी मुझे नहीं लगा कि मतलब साइकोलॉजी जो हम पढ़ रहे थे वो डिफिकल्ट था, और आपने जिस तरह से पढ़ाया मुझे नहीं लगा। और मैंने शायद लाइव क्लासेस नहीं ली, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ा था। इट इज अ गुड अप्रोच बिकॉज यू नो समटाइम्स आपका लाइफ का टाइम मैच नहीं कर रहा है एंड मैं कुछ एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको नहीं मन है वो सुनने का, तो यू कैन जस्ट स्किप इट अप, तो वो रिकॉर्डिंग्स आर द बेस्ट वे। ऑलराइट, सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी इन लेमैन टर्म्स, इन अ नटशेल, व्हाट वाज द स्ट्रेटजी? माय स्ट्रेटजी वाज सिंपल। मैंने जस्ट सबसे पहले कोर्स कंप्लीट किया, लाइक कि आपके लेक्चर्स देखे थे तो उनसे मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, तो मैंने सबसे पहले जस्ट कोर्स कंप्लीट किया और उसको मैंने 2 बार रिवाइज किया। उसके बाद उसको नॉर्मली मतलब रिवीजन के लिए एक वीक में एक पूरा सिलेबस, देन दूसरे वीक या 4 दिन में दूसरा। फिर मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए जो आपने मतलब ग्रुप में भेजे थे, और बहुत सारे मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस को ट्राई किया, और इतना ही था। मेरा कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी नहीं था कि मैंने शॉर्ट मतलब चार्ट्स बनाए या कुछ बनाए। मैंने सीधा सिर्फ रिवाइज मतलब कंटेंट को प्रिसाइज रखा और मैंने उसी को बार-बार रिवाइज किया और मैंने क्वेश्चंस लगाए, बस। ओके, सो रिवीजन वाज द की, कि आपने बार-बार चीजों को रिवाइज किया। रिवीजन वाज द की। ऑलराइट, सो यू आल्सो मेंशन्ड अबाउट द नोट मेकिंग, तो क्या कुछ ऐसा स्पेशल टाइप का नोट्स में, बिकॉज़ यू मस्ट बी नोइंग कि कुछ लोग नोट मेकिंग के नाम पे ऐसे पूरी बुक अपनी प्रिंट कर देते हैं। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी अबाउट नोट मेकिंग? मैंने नोट्स आपके लेक्चर से बनाए थे, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं था। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने अपने नोट्स में लिखा, और मुझे जो नहीं लगा मैंने नहीं लिखा। बट उसमें जैसे वैसे मैंने नोट्स बनाने के बाद है ना, मैंने टेक्स्ट बुक्स भी रीड करी थी, थोड़ा मतलब टाइम था इतना, तो मैंने नोट्स बनाया तो उससे रिलेटेड मैं टॉपिक को रीड करता था। जो भी मुझे लगता था कि एक्स्ट्रा है तो मैं उसको नोट्स में पेंसिल से साइड में लिख लेता था कि ये एक्स्ट्रा है, और ये मैं नोट्स में साइड में लिख लेता था। ऑलराइट। सो इस बार की कट ऑफ्स तो काफी हाई गए थे। व्हाट वाज योर स्कोर ऑन सीवीटी? इस बार की हैं? व्हाट वाज योर स्कोर इन सीवीटी? माय स्कोर वाज 258. 258. So you were happy with this course? You were satisfied? At that time I was satisfied. Like जब मैंने अपनी स्कोरिंग की थी, मैंने बोला था कि 240 प्लस आ जाए मेरे लिए बहुत है, लेकिन मेरा 250 है। मैं उस टाइम भी खुश था। मुझे नहीं था, मेरे को लगा था कि मेरे प्रिपरेशन के हिसाब से ठीक है स्कोर, बट कट ऑफ 275 अबव फॉर डीयू तो लगता है। ये तो पेपर एक्चुअली बहुत इजी आ गया था, तो दिस वाज द रीजन कट ऑफ। हां, पेपर बहुत इजी था, बट आई एम सेटिस्फाइड विद माय स्कोर। Alright. So my next question will be, how did you find Study Capital channel? Like क्या सर्च कर रहे थे, कैसे आपने Study Capital ढूंढा, या मुझे कैसे फाइंड आउट किया बेसिकली? अच्छा, आपको लाइक इनिशियली मैंने आपके वीडियोस देखे थे, बट मेरे को पता नहीं था आपके बारे में। तो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, आई थिंक यू नो हिम, आदित्य घोष। हाँ आदित्य, आई नो। हाँ, आदित्य घोष। तो वो मेरा सबसे पहला फ्रेंड था, मतलब साइकोलॉजी सर्कल में। तो उसकी मेरी बात होती रहती, तो उसने मेरे को बताया कि ये स्टडी कैपिटल का समथिंग है, उत्कर्ष सर पढ़ाते हैं, और उसने बहुत पहले से कोर्स लिया था आपका, शायद अगस्त से लिया था। मैंने नहीं लिया। तो मैंने उससे बोला कि बहुत मतलब फनी सी चीज है, मैंने उससे बोला कि मेरे को अपना लॉगिन पासवर्ड दे दे, मैं एक वीडियो देख के मैं तेरे को कर दूं। उसने बोला नहीं, यू हैव टू बाय द कोर्स, अदरवाइज यू विल नॉट। तो वो चीज मुझे शायद उस टाइम पर लगा कि यार एक ओटीपी है, उस पर क्या हो गया। बट वो चीज जब मैंने कोर्स लेके मतलब जब मैंने कोर्स खरीदा और जब मैंने खुद मतलब पढ़ा, तो मेरे को लगा कि वो चीज उसने अच्छा करी। तो विद माय फ्रेंड आई केम टू यू। ऑलराइट. So my next question will be, on a scale of 10, how was my batch? Like कैसे आप इसको rate करोगे? No, honest review, not just for the buttering sense. Like how did it help you? कैसा मेरा टीम चीज था and all those things, because people actually want to know the reviews. मैं अपने मुंह से बताता रहूँगा तो it will be somewhat weird. Okay. And so, I'm always open to corrections and improvements. Okay. So वैसे मैंने I didn't attend your live lectures much. I think 1 या 2 क्लास अटेंड की होंगी, वो भी मैंने नहीं करी क्योंकि मैंने ज्यादा रिकॉर्डेड ही लिया है। बट मैंने देखा है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मैंने आपके सारे देखे हैं। तो मैंने देखा है कि आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत लेट आते हो या जो भी है, मतलब टाइमिंग अच्छी रहती है बैच की। ऐसा नहीं होता, मतलब जो वीडियो भी स्टार्ट होती है वो 5-10 मिनट के अंदर हो जाती है बैच। मतलब बहुत सारे बैचेस में ऐसा होता है कि बैच स्टार्ट हो रहा आधे घंटे बाद, या मतलब टाइमिंग की पंक्चुअलिटी मिसिंग रहती है। ये चीज मैंने नोटिस की है। और
बाकी डाउट्स वगैरह भी मैंने देखे हैं लेते हो, कुछ डाउट्स मेरे भी उन डाउट से क्लियर हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं लाइव ज्वाइन करूंगा, लेकिन जब मैं आगे बढ़ाता हूँ तो मैं सोचता हूँ मेरा ही डाउट आ गया। बाकी ऑलराइट ओवरऑल ऑलराइट अच्छा था, बहुत इंटरेक्टिव लेक्चर्स रहते हैं, और बाकी आप नेक्स्ट क्लास में फर्दर क्लासेस में डाउट्स भी लेते हो। बाकी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। ओके सो देयर मस्ट बी सम ओकेजन्स जब अपनी प्रिपरेशन में तुम बहुत ज्यादा ऐसे लो फेजेस में रहे होगे, बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग लगा होगा, तो क्या वो ओकेजन्स थे एंड कैसे अपने आप को बकअप किया? सो पहला था जब मैंने अपना पहला मूव दिया था। ओके लाइक मैंने 2 मंथ्स प्रिपेयर किया था, मैंने 2 मंथ मैंने मूक स्टार्ट करे थे मार्च में। तो मैंने जैन और फैब पूरा प्रिपेयर किया, पूरा रिवीजन किया, और जब मैंने मार्च में अपना पहला मूक दिया तो मेरा स्कोर इतना था कि मैंने सोचा था कि मैं अब पेपर ही नहीं दूंगा। मतलब आप गेस भी नहीं कर सकते कितना स्कोर होगा, आप गेस करोगे? 150s में, आउट ऑफ 300 है? 150s, 200s? नो, 128 फर्स्ट मूक स्कोर। That's an amazing comeback. 128 से 250 है। लाइक सेकंड मॉक का स्कोर 129, थर्ड मॉक का स्कोर 132। मेरे को याद है, मतलब फोर्थ मॉक का स्कोर मेरा गया था 180, देन वहां से मेरा स्टार्ट हुआ, शायद मैक्सिमम मेरा स्कोर 250 या 260 है। ओके सो तो क्या चेंज जब किया मैं उस 120 से 280 260 जाने के लिए? क्या चेंज किया आपने? तो बेसिकली मैंने मतलब हम गलती ये करते हैं कि हमारा स्कोर कम आता है, हम दोबारा पूरा सिलेबस लेके बैठ जाते हैं उसको रिवाइज करने। तो मैंने जो मेरे गलत हुए थे टॉपिक्स, मैंने उन टॉपिक्स के मतलब आंसर्स को देखा, देन मैंने उन टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज किया। फिर जो सेकंड मॉक में गलत हुआ मैंने उनको दोबारा रिवाइज किया, ऐसे कर करके जो मेरे वीक एरियाज थे वो स्ट्रांग हुए, देन उसके बाद मेरा स्कोर बिल्डअप हुआ। तो फर्स्ट मॉक देने के बाद जो स्कोर था, उसके बाद मेरा सेकंड मॉक देने का हिम्मत नहीं थी। All right. So, most of the people who are watching right now, उनके ऊपर फैमिली प्रेशर्स भी काफी होता है कि एग्जाम अच्छा स्कोर करना है, स्पेशली फीमेल्स के ऊपर ये रहता है कि दिस इज द लास्ट चांस, उसके बाद शादी हो जाएगी और तो फैमिली प्रेशर क्या आप पे था कभी ऐसा, या उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? इफ यू जस्ट वांट टू गिव सम एडवाइस। मैंने आपको बताया कि मैंने नीट की प्रिपरेशन की है, तो उस टाइम शायद मैंने फैमिली प्रेशर लिया था, इस वजह से शायद मैं नहीं सिलेक्ट हुआ। इस टाइम मैंने नहीं लिया, पता नहीं मेरे मतलब उस टाइम भी नहीं था फैमिली प्रेशर, लेकिन ऐसा होता है कि आप खुद ही अपने आप, हाँ खुद ही अपने आप लेने नहीं, आपके घर वाले आपसे कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन आप खुद सोचते हो कि वो बोलेंगे ये है। क्योंकि जब मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, मैंने जस्ट बोला पापा से कि नहीं हो पाया, मतलब जहां चाहा, तो उन्होंने बोला कोई बात, मतलब उन्होंने एक ऐसा इन द सेंस यूं नहीं बोला कोई बात, उन्होंने एक नॉर्मल वे में उस चीज को साइड कर दिया। बट मैं सोच रहा था कि अगर मैं बोलूंगा नहीं तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, तो इस बार मैं इस चीज को जानता था, तो इस वजह से मैंने, मेरी फैमिली की तरफ से नहीं था और मैंने भी अपनी तरफ से कुछ नहीं लिया था। ओके ओके सो कमिंग बैक टू हैदराबाद यूनिवर्सिटी, अभी आपको कितना टाइम हो गया है वहां पे? मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था, अब जुलाई अराउंड 4 months, 3 या 4 months. Okay, so how is the city there? How is the campus life there? कैसा है वहाँ पे सब कुछ? हैदराबाद बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, और मैं दिल्ली से हूँ, तो एज कम्पेयर टू दिल्ली इट्स वेरी क्लीन। लाइक अभी मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ दिन दिखता नहीं है, वहाँ इतना ज्यादा क्लियर है और बहुत ज्यादा, मतलब And did you visited University of Hyderabad's Fisheries Department? वहाँ पे गए हैं? Which department? Fisheries Department, Department of Fisheries. No. Life Sciences, Department of Life Sciences. वो fish के shape में बना हुआ, that building is in like fish shape. I've heard this. मेरी एक senior है वहाँ पे थी, and वहाँ से मुझे पता चला था वहाँ पे जो फिश स्टडी का जो डिपार्टमेंट है फिशरीज का, उस पूरे डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर ही फिश के शेप में, लाइक मछली के शेप में है वो। That was very intriguing. Okay, just visit once. So in terms of just search it about, and after this like hostel life कैसा है वहाँ का? हॉस्टल अकोमोडेशन कैसा है? किस तरह से हॉस्टल मिलते हैं? क्या कंडीशन हॉस्टल्स की? 2-सीटर 3-सीटर कैसा है सब? हॉस्टल लाइफ अच्छा है, हॉस्टल लाइफ हर जगह का मेसी होता है। That's true. हॉस्टल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मतलब आउट ऑफ दिल्ली और आउट ऑफ होम, तो फर्स्ट टाइम हॉस्टल एक्सपीरियंस है। तो मेरे को जहां तक पता चला अपने फ्रेंड से कि जो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है वो बहुत लेट होता है एडमिशंस के बाद, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एट द डे ऑफ काउंसलिंग आपको
हॉस्टल अलॉट हो जाता है, आपको आपका रूम भी मिल जाता है, आप उसी दिन से Okay, आप अपने okay. रूम में रह सकते हैं जब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो। Oh, okay, okay. So what is the बाकी expected, like what is the around hostel fee there? हॉस्टल फीस अराउंड 5000 ऑफ नॉट 500 पर सेमेस्टर। 500 per semester. Okay, पर okay. सेमेस्टर And what about the mess? Mess का खाना कैसा है? इसका खाना अच्छा है। अच्छा है? Perfect? मुझे गाली पड़ने वाली है अगर मेरे किसी बैचमेट ने देख लिया तो। खाने लायक है, like healthy है, खाने नहीं लायक है. मतलब सर्वाइवेबल है, मैं कह सकता हूँ आपका पेट Most of भर the जाएगा। universities में, because I have also seen this कि most of the universities में हम्म, carbs बहुत देते हैं, आलू आलू हर चीज में हाँ आलू काप्स रहेगा. काप्स और स्पेशली आप साउथ में है, मतलब मेरा जो तो राइस कैंपस में भी है ज्यादा तो हो. वहां पर राइस और आप हम्म. मतलब आप वीट खाते हो और आपको एकदम से ट्रांजिशन होता है, तो हम्म. अब तो नॉर्मल हो गया मेरे लिए। अब मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि वाइट वीट से ज्यादा राइस नेसेसरी हो गया है 4-4 मंथ्स के Alright. अंदर। So like this brings me to the second question. What about the acculturation stress? आपने culture एक पूरा change किया, आप new place पे गए. Obviously we have listened so much about north and south discrimination. कैसा है वहाँ का scene? अगर Off मैं the campus. I हैदराबाद don't की think पूरी so. बात Campus में ऐसा कुछ होता होगा, but what is off the campus? अगर मैं ऑफ द कैंपस की बात करूं, मुझे नहीं लगा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन है नॉर्थ का साउथ का। मेरे को यहाँ मतलब साउथ के पीपल ज्यादा पोलाइट लगे एज कम्पेयर टू नॉर्थ पीपल, Hmm. That is my जिनसे मेरा opinion also. इंटरेक्शन हुआ, I was there in जिससे Pondicherry University जिनसे for जिनसे some time. हाँ So they were like हम्म, very good people. हाँ जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है, मैं बोलूंगा कि वो बहुत ज्यादा पोलाइट थे। मतलब हेल्प करने के लिए कि अन्ना Hmm. ये अन्ना ये अन्ना ये। अब और जो मतलब हमारे मेस में है वहीं के लोग हैं, हैदराबाद के या उनके Hmm. अदर डिस्ट्रिक्ट के बहुत ज्यादा पोलाइट लोग हैं, मतलब बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। अब उनसे All right. मतलब अगर एक दिन अगर इंटरेक्शन नहीं करोगे, वो आपसे पूछेंगे क्या दिक्कत हुआ, किस चीज का दिक्कत हुआ, मतलब एज अ Hmm. फैमिली ट्रीट करते हैं। And also one important question, what about the women's safety there? Because बहुत सारी जो females हैं वो इस चीज के लिए concern रहती हैं कि मैं इतनी दूर घर से जा रही हूँ साउथ में, अगर obviously, so safety in terms of कैसा है वहाँ का structure कैसा है? इन द कैंपस Right. कैंपस पूरा सिक्योर्ड है ओवरऑल। मतलब कैंपस जो है दो गेट हैं कैंपस के अंदर, एक नॉर्थ गेट है, साउथ गेट है, और दोनों गेट ही गार्डेड है। और उसके अंदर मतलब आप पूरे रात घूमे या फिर दिन घूमे, मतलब पूरा आप फ्री हो। मतलब इनसाइड कैंपस आप पूरे सेफ एंड सिक्योर हो, आउटसाइड कैंपस भी सिटी सेफ है एज कंपेयर टू दिल्ली। All right, all right. So also what about the faculty? Faculty कैसे वहाँ पे interaction कैसा रहता है professor students का, and how do they get along with the students? कैसा relationship है? इन माय डिपार्टमेंट तो जो फैकल्टी है अच्छी है फैकल्टी। Hmm. आई थिंक जो फैकल्टी है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। आई थिंक अगर बात कर, इस सेमेस्टर हमारा काउंसलिंग है, रिसर्च है और भी अदर कोर्सेज, जो फैकल्टी आई थिंक जो मैंने अपने अंदर से एक्सपीरियंस किया है तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लगे। मतलब जो उनका टीचिंग लाइक इस सेमेस्टर जो रिसर्च है हमारा, जो हमने यूजी में भी पढ़ा है, उसको मतलब हमारे मास्टर्स में एक और कोर्स है रिसर्च से रिलेटेड, तो मैं उसको दोबारा पढ़ रहा हूँ। लेकिन जिस वे से सर पढ़ा रहे हैं तो वो चीज मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज को प्रॉपर समझ पा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बना पा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने रीड करा तो हम कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को रखते हैं, लेकिन वो एकदम पूरा ध्यान रिसर्च की तरफ आता है। There is one important question. What about the internship culture and dissertation thing? कैसा रहता है वहाँ का सब? हाँ अगर पर्टिकुलरली मेरे कोर्स की बात करें तो हमारा डिजर्टेशन 2 सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में डिजर्टेशन पार्ट 1 और फोर्थ सेमेस्टर में डिजर्टेशन पार्ट 2। मतलब आपको एक पूरा होल ईयर मिलेगा डिजर्टेशन के लिए। बाकी इंटर्नशिप कल्चर जैसा मैंने सुना है कि इतना नहीं है एज कम्पेयर टू दिल्ली। बाकी फोर्थ सेमेस्टर में इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है। ओके, हाँ, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो कि इंटर्नशिप, बिकॉज़ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मैंडेटरी नहीं होता है इंटर्नशिप। नहीं फोर्थ सेमेस्टर में इंटर्नशिप मैंडेटरी, एंड जो आपके एचओडी हैं या आपके जो भी सुपरवाइजर हैं वो आपसे वीकली फीडबैक्स भी लेंगे, इसलिए उन्हीं के अंडर करना मैंडेटरी है। Okay, so all those aspirants who are watching right now, they are preparing, they are targeting for 2025 CUET. तो क्या उनको आप लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहोगे? 5 to 6 टिप्स जो आपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे गैदर करी हैं। Okay, tip number 1. फर्स्ट टिप में, हाँ टिप नंबर 1,
तो टिप नंबर 1 इतना ही है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि मतलब एग्जाम इतना टफ नहीं है, और इस बार का एग्जाम तो बिल्कुल टफ नहीं था। तो बट इतना है कि आपकी मतलब जिस तरह का एग्जाम आ रहा तो आपको 75 आउट ऑफ 75 ही स्कोर करना पड़ेगा टू गेट अ गुड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अदरवाइज देयर इज नो चांसेस, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मुझे नहीं लगता कि जो कट ऑफ है वो शायद 280 और 285 से भी बिलो जाएगी। तो एग्जाम इजी है, बट यही है कि आपको जितना ज्यादा आप रिवाइज कर पाओ और जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और टिप नंबर 2 MCQs का आपने ऐड किया, यू कैन जस्ट कंटिन्यू ऑन MCQs, द इंपॉर्टेंस ऑफ MCQs। हाँ, एमसीक्यूज बेसिकली क्या है कि आप जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज थे वो बहुत ज्यादा टफ थे, लेकिन अब जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो इजी आ रहे हैं। लेकिन जब आप टफ एमसीक्यूज करते हो आते हो और जब इजी देखते हो तो शायद एक आपको बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं आप उनको इजीली सॉल्व कर पाते हो। जितना ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो उतना ज्यादा बेटर है आपके लिए। रिवीजन, एमसीक्यू सॉल्विंग एंड सो टिप नंबर 3 रिलेटेड रिवीजन, एनीथिंग क्या स्ट्रैटेजी चाहिए लास्ट मिनट रिवीजन करने की? लास्ट मिनट रिवीजन मैंने लास्ट मिनट पे रिवीजन नहीं किया, मैंने सिर्फ लास्ट मिनट पे एक पेपर सॉल्व किया था और उसकी भी मैंने स्कोरिंग नहीं की क्योंकि मुझे लगा था कि इसके मार्क्स कमाएंगे और मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। और ये शायद एग्जाम मेरा 2 o'clock था और मैं 10 o'clock को बैठ के अपनी टेबल पे पेपर कर रहा था सुबह। ओके। हाँ, तो लास्ट मोमेंट पे मैं इतना ही बोलूंगा कि जितना आप चिल रह सकते हो, जितना ज्यादा आप मतलब म्यूजिक सुन सकते हो, कुछ रह सकते हो। मेरा जो फ्रेंड है जिसने मेरे को आपके बारे में बताया, तो उसने मेरे को क्या था उसको मैंने बताया कि भाई मेरा दिमाग खिला पड़ा है और मैं बुक भी नहीं छोड़ पा रहा और मैं बुक छोड़ रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है। तो उसने मेरे को एक फोक म्यूजिक सजेस्ट करा था, मैंने उस म्यूजिक को सुना, मेरा माइंड एकदम रिलैक्स हो गया। मैंने बुक्स भी नहीं खोली। तो जितना मेरी ट्रिक यही है कि आप जितना ज्यादा रिलैक्स हो सको लास्ट मोमेंट, पैनिक नहीं करना। अगर आप पैनिक करोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि जितना आपको आता होगा आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज ही होगी। एंड टिप नंबर 4 रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अब 25 क्वेश्चंस जो जनरल एबिलिटीज वाले थे वो हट चुके हैं। सिर्फ 75 क्वेश्चन आपके फैक्ट बेस है या फिर कुछ स्टैट्स के क्वेश्चन आते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट इतना नहीं है। लेकिन फिर भी आपको, हाँ, मैं पेपर सॉल्विंग का एक बता सकता हूँ कि पेपर भी जो शायद आपने बोला था, मुझे याद नहीं किसने मुझे बताया था कि पेपर कभी भी है ना एक बार में खत्म नहीं करना, पेपर को 3 बार में खत्म करना है या 4 बार में, जो भी बोलते हैं कि फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन लगते हैं, आप मुझे नहीं पता, शायद आपने ही बोला था, मे बी बहुत कॉमन टिप है, मे बी मैंने कभी बोला हो, बहुत याद नहीं है। हाँ, तो मतलब आप जब अपना पेपर स्टार्ट करते हो तो पेपर में जो क्वेश्चन आप 100% डैम श्योर हो कि ये सही है तो आप उनको स्टार्ट करो। मतलब 75 में से कुछ 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप डैम श्योर हो, या 25 क्वेश्चन होंगे। देन उसके बाद जो आप 75% श्योर हो, देन 25 और ऐसे करके आपका पेपर होगा। कभी भी ऐसे पेपर नहीं होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन देन सेकंड क्वेश्चन देन थर्ड क्वेश्चन, ऐसे करके। And last tip would be, I'll suggest कि what not to do while preparing for exam. कुछ ऐसा है क्या? Not to do. I think क्या ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो बहुत लोग मे बी कमिट कर रहे हैं वो मिस्टेक? हाँ, ये चीज है, इसका है आंसर मेरे पास। ये चीज मैं सबसे ज्यादा करता था कि मेरा जो फर्स्ट मूक मैंने बताया ना, मेरा मार्क्स कम क्यों आया। मेरा मार्क्स कम इसलिए आया क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं श्योर नहीं था लेकिन मैं उनको कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को डर लग रहा है कि मैं 25 क्वेश्चंस करूंगा, 25 में मेरे मार्क्स कम आएंगे, इसलिए मैं 25 को छोड़ के 50 क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आता आप उसको छोड़ दो, बेटर है। लेकिन जब आपका गलत होगा ना वो क्वेश्चन, आपको ज्यादा रिग्रेट होगा। कि जैसे मैंने जो मेरा फर्स्ट मूक था उसमें मेरे अराउंड शायद जितने करेक्ट नहीं थे उससे ज्यादा इनकरेक्ट थे। लेकिन जो मेरा लास्ट जो सीयूटी एग्जाम था उसमें मैंने 67 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मेरे 65 करेक्ट थे, 2 क्वेश्चंस ही गलत थे। तो टिप मैं यही दूंगा कि अगर आप नहीं हो श्योर, अगर आप हल्का फुल्का लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दें तो ज्यादा बेटर है। ओके। क्योंकि अगर आप उसको स्किप करोगे ना तो नेक्स्ट टाइम आपको रिमेंबर रहेगा, क्योंकि मेरा मार्क्स इसकी वजह से गया था। सो आपने कौन कौन से कॉलेज को फिल किया था व्हाइल अप्लाइंग इन द सीयूटी, जो आपके टॉप 3-4 कॉलेजेस थे? फर्स्ट डीयू था सबकी तरह, देन डीयू किया था मैंने, एओडी भी किया था, बीएचयू एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ओके। सो एनी स्पेसिफिक रीजन कि आपको हैदराबाद ही एकदम से मिल गया, एकदम से हैदराबाद आप क्यों चल गए? लाइक ये थॉट आया था कि घर से इतना दूर?
ऐसा कुछ थॉट? बिकॉज हाँ। बहुत लोग को होम सिकनेस वाला एक फैक्टर आता है याद। सबको आता है, मेरे को सबसे ज्यादा हुई थी। हम्म, तो मेरे पास ना इसका बहुत कॉमन सा आंसर है, लेकिन मैं जब हर किसी से बोलता हूँ तो मेरे से बहुत जने बोलते हैं कि इसको मत बोला कर, कि मतलब मेरे से मतलब प्रोफेसर्स भी, जब हमारी क्लास हुई थी तो मेरे से सब मतलब हर प्रोफेसर पूछता है कि व्हाई डिड यू चूज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, व्हाट्स स्पेशल अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो मेरा जैसे एक सिंपल आंसर था, बिकॉज आई गॉट सिलेक्टेड देयर। ये इतने मतलब लोग को फर्स्ट, डाइजेस्ट नहीं होता है। हाँ वो बोलते हैं कि इतना मतलब क्लीशे, इतना सिंपल आंसर मत दो, लाइक कि इट इज अ इंस्टीट्यूट ऑफ हाँ, एमिनेंस, कॉम्प्लिकेट दैट्स व्हाई करो। यू देयर, इट्स अ साउथ एंड ये मेरा सिंपल यही था कि सबसे पहले जो मेरा जो पोर्टल पे शो हुआ वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तो इसलिए प्रायोरिटीज मैं देखनी पड़ती हैं सबसे पहले, एक अच्छी डिसेंट उसमें एडमिशन लो, फिर देखो और क्या क्या मिल रहा है चीजें। हम्म। बाकी ओके मेरा ओके। ये था कि अगर मेरा डीयू होता है तो मैं सोचूंगा ड्रॉप करने, सोचूंगा नहीं, सोच कर ही देता, बट हाँ, no worries. My point is कि जहाँ पे भी आप हो, whether it's at state university also, just try to utilize the resources which are there at 100% efficiency. नहीं अब मतलब मैंने 2-4 महीने हुए हैं मुझे, तो मेरे को लगता है कि जिस तरह की मैं डाइवर्सिटी वहां देख रहा हूँ, या मतलब मतलब मैं डीयू में अगर होता तो मैं शायद एक डे स्कॉलर रहता, वहां मैं एक हॉस्टलर हूँ। और जिस तरह का मैंने मतलब कल्चर, नॉट हैदराबाद में, सिर्फ हैदराबाद नहीं है, लाइक हैदराबाद में पूरा साउथ है, पूरा नॉर्थ भी है, तो वो पूरा एक राइट। मिनी इंडिया को जो मैं देख रहा हूँ और मतलब लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लाइक डिफरेंट कल्चर्स, तो वो मुझे लगता है मैं डीयू में नहीं मिलता। मिलता भी तो एक बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, उतना नहीं होता, लेकिन हैदराबाद में बहुत ज्यादा अमाउंट में साउथ है एज कम्पेयर टू। एंड दिल्ली ऑल्सो वॉज फेमिलियर टू यू, एंड हैदराबाद से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक काफी अच्छा रोल होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। All right. So thank you so much. Anything further you want to add in the conversation? Any one-liner for the aspirants? It's easy It's easy. for me. It's easy if you'll put efforts. हाँ नहीं, if you are really passionate, if you are interested in psychology, it's very easy, but you have to be consistent, बस। Consistency. मैं हाँ, मैंने आपसे यही बोला कि मतलब मुझे साइकोलॉजी पढ़ना टफ नहीं लगा, लेकिन जो आप डेली का अपना 6 आवर्स या फिर 3 आवर्स भी, जो भी आप 2 आवर्स दे रहे हो, वो आप कंसिस्टेंटली दे रहे हो ना, तो वो चीज टफ है, क्योंकि हर कोई नहीं दे पाता। आप वीक में 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन आप एक वीक में एक कंसिस्टेंट वे में नहीं दे पाते, तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इजी है। All right. Thank you so much. So this was Yash for you people, and we'll be coming up with the more videos. You can just subscribe the channel, and also you can join my new batch if you're preparing for the CUT 2025. Thank you so much. Thank you, Yash. All the best. थैंक यू सर फॉर हैविंग।